I'm Dr. Mishael Hussain, aesthetic physician and skincare expert. Still dealing with dullness, breakouts, or texture? Here are some dermatologist-approved tips that actually work. Tip number 1, you should be double cleansing every night to get rid of excess dirt, dust, SPF, makeup, and we can start with an oil-based cleanser like the Orange Double Action Cleanser by Rivage. You can follow that up with a water-based cleanser like the Neem Extract Brightening Face Wash by Rivage, just to make sure that you've really cleansed your pores without stripping your skin. Tip number 2, exfoliate, but without over exfoliation. इसका मतलब ये कि आपने एक एक्सफोलिएंट ज़रूर यूज़ करना है, आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं if your skin is tolerant to it. There are two types of exfoliants, a chemical exfoliant and a physical exfoliant. For chemical exfoliation, you can use the AHA plus BHA exfoliating serum by Rivage every single day, even if your skin is tolerant to it. Do start out slow though, so let's just test it out. You only need 1 or 2 drops for your entire face and neck. So make sure कि आप बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं and you are following it up with a moisturizer as well. You can see that it's a super lightweight, non-sticky formula and it is really not harsh. It will be very gentle on your skin while carrying out the chemical exfoliation, which is amazing. So this is what it looks like on bare skin, and you can compare कि इस side पे you can see a more hydrated, brighter appearance, whereas this side is slightly more dehydrated and dull. On the other hand, you can do physical exfoliation, लेकिन ये आपने make sure करना है कि आप हफ्ते में एक ही दफ़ा करें, and the way to do it is you can use the Apricot Brightening Scrub by Rivage. Scrubs are generally physical exfoliants. This one is one of my favorites because it's still very gentle on your skin and it's not going to, now I shouldn't actually be using it on the same hand, but it's okay. We'll just go with it just for you guys. So it is again super gentle, and the way to use this would be that you apply it in circular motions on your face and you don't leave it on too long, just wash it off with lukewarm water. और इससे भी आपको एक बहुत स्मूथ ब्राइटन्ड अपीयरेंस मिलेगी। टिप नंबर 3 है कि आपने अपनी स्किन के ऑयल्स को किस तरह बैलेंस करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या आपकी स्किन पे पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तो फिर आप नाइसिनामाइड और जिंक वाला रिवाज का सीरम इस्तेमाल करें। दिस विल हेल्प मिनिमाइज पोर्स। अगर आपकी स्किन के कुछ एरियाज हैं जो कि ज़्यादा ऑयली हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन स्किन में यूजुअली टी जोन ज़्यादा ऑयली होते हैं और चीक एरियाज ड्राई होते हैं, फिर भी आप ये जिंक और नाइसिनामाइड वाला सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो ज़्यादा ऑयली वाले एरियाज़ हैं उनको कम ऑयली कर देगा और जो बाकी एरियाज़ हैं उनको बैलेंस आउट कर देगा। और अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या एक्टिव एक्नी ज़्यादा है, आपको स्पॉट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आपको हार्श ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो फिर आप फिर भी ये सैलिसिलिक एसिड वाला रिवाज का सीरम यूज़ कर सकते हैं। दिस विल really help reduce the acne without stripping or drying your skin of essential oils. आपके स्किन बैरियर को ये बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा, आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा। तो इस वाले सैलिसिलिक एसिड एक्नी कंट्रोल सीरम को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी एक्टिव एक्नी या फिर एक्नी मार्क्स या फिर एक्नी प्रोन स्किन है। और अगर आपकी स्किन डल या डिहाइड्रेटेड है और उसे ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो फिर हम हाइलुरोनिक एसिड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में मॉइस्चर को ट्रैप करता है, यानी कि अगर आप हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और ट्रैप हो जाता है। अगर आप इसके बाद मॉइस्चराइज़र अच्छा सा लगाएंगे, जैसे का रिवाज का रोज स्किन जेल, तो और भी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। टिप नंबर 4, बी कंसिस्टेंट विद टारगेटेड सीरम्स। इसका मतलब है कि जो भी ट्रीटमेंट आप अपने मसले के लिए स्टार्ट करते हैं वो एटलीस्ट 6 हफ्तों तक रेगुलरली करें, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स का अंदाज़ा हो सके। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। आपने हर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी आप अपनी स्किन केयर रूटीन में स्टार्ट कर रहे हैं उसे मिनिमम 6 वीक्स ज़रूर दें, और एक ही टाइम पे 1 या 2 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपने नहीं इस्तेमाल करने हैं। ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए या एंटी एजिंग पर्पस के लिए आप विटामिन ए और उनका एंटी फ्रेकल सीरम यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आपका हमल है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर पूछिएगा। इफ़ योर मेन स्किन कंसर्न इज़ डलनेस, तो फिर हम ग्लूटाथायोन वाला सीरम इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स ब्राइटन अप योर स्किन। और अगर आपको एक्नी का मसला है तो ये टी ट्री सीरम ज़रूर इस्तेमाल करें। दिस इज़ रियली हेल्पफुल। ये ऑयल को बैलेंस आउट करता है एंड इट ऑल्सो हैज़ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। इट्स वेरी calming and hydrating for the skin as well. बेसिक स्किन केयर रूटीन का हमारा स्टेप नंबर 3 है मॉइस्चराइज। दिस इज़ अ स्टेप जो आपने कभी भी स्किप नहीं करना। इट इज़ फॉर इंटेंस हाइड्रेशन एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द रिवाज मॉइस्चराइजर्स इज़
कि ये सारे वाटर बेस्ड हैं, दे आर फिल्ड विद इंटेंस हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़। अगर आपको स्किन कामिंग इफेक्ट चाहिए दैन यू विल बी यूजिंग द लैवेंडर स्किन जेल। अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट चाहिए, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, दैन द रोज स्किन जेल इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। और अगर आपको एक कूलिंग कामिंग इफेक्ट चाहिए स्पेशली इस गर्मी में, दैन एलोवेरा जेल इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। अगर आपकी स्किन ड्राई या डिहाइड्रेटेड या इरिटेटेड है तो फिर आप लैवेंडर स्किन जेल इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन काम और सूद हो जाएगी। अगर आपको एक कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो फिर आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, इससे एक बहुत सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट आता है स्पेशली इस धूप में। और अगर आपकी एक्नी प्रोन या एक्टिव एक्नी फिल्ड स्किन है तो फिर आप रोज़ जेल का इस्तेमाल करें। प्रो टिप, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। दिस इज़ अ ह्यूज मिथ कि अगर आपकी एक ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उससे स्किन और ऑयली हो जाएगी। दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। अगर आप एक वाटर बेस्ड और इंटेंस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र जैसे कि ये रोज स्किन जेल, एलोवेरा जेल या लैवेंडर जेल बाय रिवाज है तो फिर इससे आपका ऑयल कंट्रोल होगा, बैलेंस होगा। So this is a step that you should not be skipping. So that's it guys, that was the Skin Talk by Rivage. Subscribe for more skincare tips and stay tuned for the next episode.